Go. Assalamu alaikum, dear students. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is sentences types and colors and its types. Shaba, you know what is a sentence? It's a group of words that makes complete sense. It is a group of words that makes a complete sense. For example, Rashid sat Rashid sat in a corner. Rashid sat in a corner. Or where do you where do you live? Where do you live? Or be quiet. Yes, dear students. Oh, send in a group of words that makes a complete sense. For example, Rashid sat in a corner. This group of words makes a complete sense. Where do you live? Be quiet. Now, kinds of sentence. Kinds of sentences. Number one is yes, declarative. Declarative. Number two is declarative. Number two is interrogative. Interrogative. Yes. Number three is imperative. And number four is exclamatory. Yes, dear students, you already know those sentences which make statements or which make assertions. They are called declarative sentences or assertive sentences. For example, he sat on a wall. He sat on a wall. Then there are interrogative sentences. They ask a question. For example, where do you live? Where do you live? At the end of interrogative. Yes, yes. At the end of interrogative sentence, there is there is an interrogation mark or question mark. Uh, or do you like apples? Do you like apples? This first question it is a WH question, and second it is a yes or no question because its answer can be yes or no. Then there is third imperative question, imperative sentence. Yes, imperative sentences they express commands, requests, or entreaties. For example, be quiet, be quiet, or have mercy upon us, have mercy upon us. Yes, dear students. Then there are exclamatory sentences. You know, they express strong feelings. They express strong feelings. For example, what a shame! What a shame! Yes, how lovely! Yes, dear, how cold the night is! How cold the night is. Yes, dear students. Yes, dear students.
how you know sentence now you know sentence are up to four types: declarative sentences, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Now let us move to how many uh, parts of a sentence are. Yes, yes, dear students, parts of a sentence. Parts of a sentence. Yes, parts of a sentence. There are two parts of a sentence. Two parts. Yes, dear students. Number one is subject, and number two is predicate. Yes, dear students. What is subject? It is a part of a sentence which names the person or thing. It names the person or thing. हाँ, we are speaking about. ये क्या बोलता है? ये उस शख्स या चीज का नाम होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंस आपने अभी पढ़ा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट वो छोड़ा जाता है क्योंकि वो ऐसे ही मतलब ये अंडरस्टूड होता है. नाउ ये हो गया सब्जेक्ट. क्या हुआ सब्जेक्ट? ये सेंटेंस का वो ऐसा होता है जो उस शख्स का नाम या उस चीज का नाम बताता है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या बोलते हैं. अब एक खास बात, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को छोड़ा जाता है. चलो, सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है. यस, लेट अस टेक एन एग्जांपल. he sat on a bench. He sat on a bench. Yes, dear students. इसमें सब्जेक्ट कौन है? Yes, you are correct. Subject is he. And sat on a wall, it is predicate. It is predicate. Yes. Next sentence. Nature is the nature is the best physician. Nature is the best physician. इसमें आप बता सकते हैं सब्जेक्ट कौन है? Yes, nature इसमें. Yes, correct. Nature इसमें सब्जेक्ट है, is the best physician इसमें predicate है. Now, अब हम एक और लिहाज से हम ले लेंगे ये सेंटेंसेस की टाइप्स. सेंटेंस जो है ये सिंपल भी हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. शाबाश. अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? शाबाश. अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा ना. सिंपल सेंटेंस हो गया वो जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा. शाबाश. तो क्या हुआ? इसमें वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट. किसमें? सिंपल सेंटेंस में. तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? शाबाश. मतलब कोई एग्जांपल? द फॉक्स रेन. द फॉक्स रेन. इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? द फॉक्स. और रेन क्या है? प्रेडिकेट. ये तो सिंपल सेंटेंस है. यस डियर स्टूडेंट. एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको. his courage won him prize. His courage won him prize. शाबाश. His courage won him prize. Yes. His courage won him prize. बताइए मुझे इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है? Yes, his courage is subject, won him prize is predicate. So lovely. जी. इसी तरह है एक और सेंटेंस, लीव ओनली.
लीव, बताए इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है? ओनली लीव, LEAV, लीव, बस लीव एक फुल सेंटेंस है। नो, इसमें सब्जेक्ट तो जोड़ा गया ना, मैंने पहले ही बोला। जो सेंटेंस वो होता है, कभी सिर्फ इसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है, पूरा सेंटेंस। मसलन भाग जाओ, रन, हाँ, गो, जाओ, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। हाँ, इसमें असल में इस तरह होता है, यू लीव और यू गो, लेकिन यू हम छोड़ते हैं, ये अंडरस्टूड है ना। शाबाश, चलो। तो इस तरह हमने आपको सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल दी, ठीक। अब हम लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, यस यस स्टूडेंट। अब हम लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से मेन क्लास होते हैं या प्रिंसिपल क्लास होते हैं। क्या होता है इसमें? दो मेन क्लास या दो, टू और मोर मेन क्लास, टू और मोर मेन क्लास। शाबाश, इसमें दो या दो से मेन, ज्यादा मेन क्लास होते हैं, ठीक। यहाँ एक बात मैं बताऊं, मेन क्लास होता है वो क्लास जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, यानी जो इलाहा तो अपने पूरे माने भी दे सकता है, सेंस भी दे सकता है, ठीक। हाँ, और हर एक क्लास मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट होता है। और ये भी बात है कि ये एक ही रैंक या एक ही, हाँ, एक ही रैंक या एक ही लेवल के हो सकते हैं। क्या होते हैं? एक ही रैंक या एक ही लेवल के। शाबाश। यस यस स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, और ये एक बात और रखनी है, आपने कंजक्शन पढ़े हैं, इनमें कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। मसलन एंड है, बट, और, ये उनमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। किनमें? कंपाउंड सेंटेंसेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कंपाउंड सेंटेंस हो गया वो जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लास होते हैं, मेन क्लास होते हैं। हर एक क्लास इंडिपेंडेंट हो सकता है, होता है। उनमें कौन किस किस्म के कंजक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे एंड, बट, और वगैरह वगैरह, ठीक। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल देता हूं मैं, द मून वॉज ब्राइट, द मून वॉज ब्राइट, जिस तरह इस वक्त है, द मून वॉज ब्राइट, एंड वी कैन see our way, we can see our way। यस, यहाँ तो दो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल, द मून वॉज ब्राइट पूरा माने देता है अलग, वी कैन सी आवर वे ये भी पूरे माने देता है, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं एंड से, इसलिए यहाँ एंड जो है कंजक्शन है ना। और बेटो किस किस्म का कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट मतलब जोड़ना, ये जोड़ते हैं, ठीक। अगर एंड हम हटाएंगे तो ये दो सेंटेंस बनते हैं या दो क्लास बनते हैं, अलग अलग पूरा माने देते, ठीक। शाबाश, बिल्कुल। अब हम मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक मेन क्लास होता है। क्या होता है? एक मेन क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा, वन और मोर डिपेंडेंट क्लास होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास या दूसरा लफ्ज है इसके लिए सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट, हाँ, सब ऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास। और जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर मैं बताता हूं, इसमें एक मेन क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। और इनमें किस किस्म के कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कंपाउंड में हमने कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल किया? कोऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट। मैं चंद एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, हु, ही, whom, 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 whose, ठीक,
इसी तरह है when, इसी तरह है which, yes dear students, इसी तरह है because, इसी तरह since, since, इसी तरह है so that, yes, likewise as, इसी तरह lest, lest, इसी तरह though, इसी तरह although। ये उसमें हम क्या करते हैं इस्तेमाल? कंजक्शन। किस किस्म के कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर मैं आपसे रिपीट करवाता हूँ। क्या हो गया कंप्लेक्स सेंटेंस? वो सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और किस किस्म के कंजक्शन इसमें होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फॉर एग्जांपल हु, व्हेन, व्हिच, हुज, दैट, इफ, यस, बिकॉज, सिंस, सो दैट, एज, लेस्ट। ठीक, शाबाश। अब मैं आपको कुछ करता हूं एक मिसाल से समझाने की। फॉर एग्जाम्पल दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम। हाँ, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इसमें कौन सा ऐसा अलग रह सकता है, अलग मानी दे सकता है? शाबाश। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। हाँ, नो, दे रेस्टेड पूरा मानी देगा अलग। अगर इन दो इसको अलग दो ऐसे करेंगे। व्हेन इवनिंग केम ये डिपेंड करता है किस पर? दे रेस्टेड पर, है ना? दे रेस्टेड तो ये मेन क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, क्योंकि ये अलग से मानी देता है, अपना पूरा सेंटेंस पूरा देता है। दूसरा हिस्सा जो है इसका व्हेन इवनिंग केम। अगर उर्दू मानी में बताता हूं, जब शाम आई, जब शाम आई तो आगे इसको और कुछ मिलाना है। इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है। हाँ, ये डिपेंडेंट है, ये पूरा माने नहीं देता है, है ना? इसलिए इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। हाँ, ठीक। अब आप बात समझ गए। दे रेस्टेड मेन क्लॉज, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे हम एक और में, हाँ, एज वी मूव टुवर्ड्स, ज्योग्राफी से मैं आपको एग्जांपल, एज वी मूव टुवर्ड्स इक्वेटर इट बिकम्स हॉटर एंड हॉट, है ना? हाँ, इसी तरह यहाँ भी दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया जब शाम आ गई। ठीक, अगर हम इतना ही कहेंगे जब शाम आ गई तो आगे कुछ जोड़ना है, वही जोड़ना जो है वो मेन क्लॉज है, क्योंकि इस पे ये डिपेंड है। ठीक, चलो एक और एग्जांपल आपके लिए। although he was poor, ALTHOUGH, although he was poor, although he was poor, he was happy, he was happy, HAPPY। शाबाश। आप मुझे बता सकते हैं इसमें मेन क्लॉज कौन है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन है? शाबाश। अच्छा, इसमें कंजक्शन कौन है? पहले कंजक्शन जोड़ने वाले लफ्ज कौन है इसमें? नो, इसमें ऑल्दो है जोड़ने वाला लफ्ज, है ना? ऑल्दो। हाँ, ये ऑल्दो ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी। अगरचे वो गरीब था लेकिन खुश था, है ना? हाँ, देखो यार, ही वाज हैप्पी तो मेन क्लॉज है, क्योंकि अलग से पूरा मानी देता है, पूरा सेंटेंस देता है। ऑल्दो ही वाज पुअर, अगरचे वो गरीब था, अगरचे वो गरीब था तो आगे इसके साथ और कुछ जोड़ना है, वो मेन क्लॉज है ना? तो इसका यहाँ आ गया आपको डिपेंडेंट क्लॉज पहले या सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले और मेन क्लॉज बाद में, मेन क्लॉज बाद में। तो इस तरह आप क्या करते हैं, जो कंप्लेक्स सेंटेंस होता है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मेन क्लॉज पहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में। हाँ, या जो दूसरा सेंटेंस सबका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले, मेन क्लॉज बाद में। हाँ, ये दो तरीके हैं एक सेंटेंस, ये कंप्लेक्स सेंटेंस लिखने के लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा जाता हूँ क्लॉज पर, क्योंकि ये क्लॉज है ना हर जगह, तो आप थोड़ा ये परेशान रहेंगे ये क्लॉज क्या है। हाँ, CLAUSE क्लॉज। ठीक, शाबाश।
क्लास आप जानते हैं क्या होता है क्लास? ये सेंटेंस होता है या सेंटेंस का हिस्सा, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ना हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्लास नहीं करेंगे, उसको कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे? फ्रेज। तो ये क्लास के लिए जो हम किस्म ले लेंगे, एक हो गया मेन क्लास, मेन या प्रिंसिपल क्लास, ठीक। सेकंड हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास या इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। और तीसरा है नाउन क्लास, नंबर 4 है एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास। इसी तरह नंबर 5 है एडजेक्ट क्लास। और भी टाइप्स हैं, लेकिन हमें ये जरूरत है जब हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कन्वर्जन यानी उनकी एक दूसरे में तब्दीली पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें ये जरूरत आती है, इसलिए मैंने इन्हीं को चूज किया। एक हो गया मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, तीसरा हो गया नाउन क्लास, फोर्थ हो गया एडवर्ब क्लास, फिफ्थ हो गया एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिवल क्लास, ठीक। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल क्लास का क्या होता है। ये हो गया जो कंप्लीट सेंटेंस बनाता है बाय इटसेल्फ। हाँ, ये इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए सेपरेट सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लास एक अलग सेंटेंस के तौर रह सकता है, पूरा सेंटेंस ले सकता है। जी जैसे भी आपने पढ़ा, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। इसमें दो मेन क्लास आ गए, द मून वाज ब्राइट, वी कुड सी आवर वे, आ गए ना? शाबाश। अब सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास वो है हाँ जो बाय इटसेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता है और बाय इटसेल्फ गुड सेंस नहीं दे सकता, ठीक। ये डिपेंड करता है हमेशा मेन क्लास पर। किस पर? मेन क्लास पर। जैसे भी आपने पढ़ा, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, इसमें डिपेंडेंट कौन है? व्हेन इवनिंग केम, ये डिपेंडेंट है। अब हो गया नाउन क्लास, नाउन क्लास, ये नाउन क्लास ये होता है सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास। हाँ, जो एक नाउन का काम करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अभी बात हो रही थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, वो जो क्या होता है नाउन क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास होता है जो नाउन का काम करता है। वी डज द वर्क ऑफ नाउन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, what he said was true, हाँ, what he said was true। यह जो है ये जो हाँ, यहाँ पे वर्ब कौन है? यहाँ देखो, यह वर्ब है दूसरे या इस हिस्से में was true जो है हाँ, ये बनता है सब्जेक्ट। व्हाट ही सेड जो है ये बनता है सब्जेक्ट किसका? वर्ब वाज का। व्हाट वाज ट्रू, अगर इस तरह कहेंगे व्हाट वाज ट्रू, तो ये व्हाट का मायने हमें कौन देता है? व्हाट ही सेड। तो ये व्हाट ही सेड जो है ये सब्जेक्ट बनता है किस वर्ब का? वाज का। लिहाजा ये क्या है? नाउन क्लास। क्या है? नाउन क्लास। एक और सेंटेंस में आपको देता हूं, why he left is a mystery, हाँ, यानी वो क्यों छोड़ गया, वो क्यों भाग गया, ये एक मौमा है। शाबाश। ये बनता है why he left, ये बनता है सब्जेक्ट किसका? इज जो वर्ब है इसका। हाँ,
इज जो है ना वर्ब, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, लेकिन वो तो है ये इसका सब्जेक्ट बनता है। एक और एग्जांपल देता हूं, आई होप दैट इज आई होप दैट वाज ट्रू। आई होप दैट वाज ट्रू। आई होप दैट वाज ट्रू। शाबाश। या आई सब्जेक्ट, होप वर्ब, इस वर्ब के साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन गया है वो कौन से वर्ड्स बन गए? ऑब्जेक्ट। दैट वाज ट्रू, दैट वाज ट्रू, दैट वाज ट्रू। तो ये वर्ब बन गए, ये बन गया ऑब्जेक्ट किस वर्ब का? होप्ड का। लिहाजा ये भी नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। I asked the boy how old he was. I asked the boy how old he was. I asked whom? किसको पूछा? Boy को। क्या पूछा? How old he was. यह ये बन गया ऑब्जेक्ट किस वर्ब का? आस्कर का। किस वर्ब का? आस्कर का। इसी तरह एक और सेंटेंस, I expect that I should get a prize. I shall get a prize. I expect that I shall get a prize. I expect that I shall get a prize. शाबाश। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? That I shall get a prize. ये जो that I shall get a prize, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, क्योंकि ये बनता है, हाँ, जो एक्सपेक्ट, जो आई एक्सपेक्ट व्हाट, ये यहाँ व्हाट का आंसर देता है। लिहाजा ये कौन सा क्लॉज है? पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, फिर तो नाउन क्लॉज है। हाँ, इसी तरह एक और सेंटेंस में आपको कहता हूं, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। शाबाश। यहाँ जो है इन व्हाट यू से, इन इस ग्रुप में इन जो है ये स्टार्ट करता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ये प्रिपोजिशन है। लिहाजा ये बनता है नाउन क्लॉज, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनता है प्रिपोजिशन इज का। प्रिपोजिशन इज का। चलो अब हम लेते हैं नाउन क्लॉज के बाद एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो होता है ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ये एडवर्ब का काम करता है। तो ये करता है वर्क ऑफ एन एडवर्ब, वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब, आप जानते हैं ये मॉडिफाई कर सकता है किसी वर्ब को, यस, किसी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। यानी एक एडवर्ब तीन काम करता है, या वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। किसमें? शाबाश, ए मेन क्लॉज में। मेन क्लॉज में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल it is hot. Strike the iron while it is hot. एक और एग्जांपल, you are taller than, you are taller than I thought. I thought. तीसरे एग्जांपल, he ran so quickly. He ran so quickly that he soon overtook me. Overtook me. हाँ, strike the iron while it is hot. आप मुझे बताइए यहाँ वर्ब कौन है? स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक द आयरन।
अगर हम फुल सेंटेंस बनाते तो हम ऐसे करते यू स्ट्राइक द आयरन। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट छोड़ दिया है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। इसको छूना है आयरन को जब ये गर्म होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं मुझे मेन क्लास कौन है, शाबाश, स्ट्राइक द आयरन। सबऑर्डिनेट क्लास कौन है, व्हाइल इट इज हॉट, है ना डिपेंडेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, यह स्ट्राइक द आयरन मेन क्लास है। इसी स्ट्राइक जो वर्ब है मेन क्लास में, इसको मॉडिफाई करता है व्हाइल इट इज हॉट। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ वर्ब स्ट्राइक मॉडिफाई हो गया, यहाँ तो वर्ब हो गया मॉडिफाई, लिहाजा ये क्लास जो है व्हाइल इट इज हॉट ये हो गया एडवर्ब क्लास। इसी तरह यहाँ है आपको दूसरे सेंटेंस में टॉलर जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ मेन क्लास में टॉलर देन आई थॉट, ये जो है देन आई थॉट ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव टॉलर को, लिहाजा ये एडवर्बियल क्लास है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में he ran so quickly that he soon overtook me, that he soon overtook me ये मॉडिफाई करता है क्विकली को, लिहाजा ये मेन क्लास में क्विकली जो है हाँ एडवर्ब है इसको मॉडिफाई करता है। इसलिए ये तीन एग्जांपल्स आ गए आपको इसकी एडवर्ब क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास, हाँ एडजेक्टिव क्लास जिस तरह आप समझ गए नाउन क्लास एडवर्ब क्लास, तो एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना प्रेडिकेट होगा सब्जेक्ट होगा वो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव किसमें, मेन क्लास में। ये भी सबऑर्डिनेट क्लास होता है, तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो ये क्या करता है, ये वर्क करता है, वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन द मेन क्लास, इन द मेन क्लास। तो ये क्या करेगा आपको मालूम है एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। हाँ फॉर एग्जांपल uneasy lies the head, uneasy lies the head that wears the crown, that wears the crown, यानी जिसकी कोई जिम्मेदारी होती है और वही होता है, वही जिम्मेदार होता है परेशान। uneasy lies the head that wears the crown। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कौन मॉडिफाई हो गया कौन क्वालिफाई हो गया। uneasy lies the head ये मेन क्लॉज है, इसमें ये हेड यानी जिसको जिम्मेदारी होती है उसी को सर दर्द होती है वही परेशान होता है। तो ये हेड जो है नाउन ये मॉडिफाई हुआ कैसे, that wears the crown, ठीक। तो यह इसने एडजेक्टिव का काम किया, that wears the crown इसने मॉडिफाई किया मेन क्लॉज में हेड को, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और एक सेंटेंस he is the man, he is the man whom we all respect, whom we all respect, शाबाश। he is the man ये तो मेन क्लॉज है, तो मेन क्लास में जो है ही भी नाउन है, ये ही प्रोनाउन है, मेन जो है ये नाउन है। तो ये मेन जो नाउन है ये इसको कौन से वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं, यानी इसका मानी बढ़ाते हैं। हूम याद है, ये वही शख्स है वही आदमी है जिसके हम सब इज्जत करते हैं। तो ये वर्ड जो है हूम और रेस्पेक्ट ये मॉडिफाई करता है किस नाउन को, मैन को मेन क्लास में, ठीक। एक और सेंटेंस गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, गिव मी सम फूड विच आई मे ईट। यस डियर स्टूडेंट, गिव मी सम फूड ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सॉरी ये मेन क्लॉज है। गिव मी सम फूड ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो विच आई मे ईट ये पूरे इसका पूरा सेंटेंस नहीं है, अगर इसमें भी है हाँ
इसमें भी अपना सब्जेक्ट है आई और प्रेडिकेट है मे ईट, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यह आपने देखा गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, तो ये फूड विच आई मे ईट ये मॉडिफाई होता है, तो ये किस क्लॉज से मॉडिफाई होता है? फूड विच आई मे ईट, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। गिव मी सम फूड, गिव मी सम फूड टू ईट, टू ईट, यस। गिव मी सम फूड मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो किससे मॉडिफाई हो गया ये? टू ईट से। तो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, लेकिन इसके साथ हमने लगाया टू, हाँ, तो ये लेता है किसकी जगह? एडजेक्टिव क्लॉज की जगह। तो ये भी मॉडिफाई करता है यहाँ इसको, सम फूड को, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज। इस तरह बच्चों आप समझ गए। हाँ, तो इसके बाद हम उठाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरंट एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो हमें फिर जरूरत आएंगे किसमें? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, उनके कन्वर्जन में, उनकी तब्दीली में। ठीक, चलो खुदा के हवाले।